invite District Social Welfare Officer Dr. Sarvaj Shahzad to kindly present the Khataks to our honorable guests. To formally welcome our dignitaries, I respectfully invite Director Social and Tribal Welfare Department, UT Ladakh, Madam Kunjis Ango, to deliver the welcome address. Is Janjatiya Gaurav Divas across the nation, and the period from 1st to 15 November is celebrated as Janjatiya Gaurav Varsh and Pakwada to acknowledge past sacrifices and advance the future of tribal youth. So in UT Ladakh, we observed the Janjatiya Gaurav Varsh 2025 in collaboration with the Department of Social and Tribal Welfare Department and the Tribal Research Institute Ladakh. We organized a wide range of. He also managed to unite the tribal communities to fight against the British rule and also fought against the zamindari system and the moneylenders. Because of this, initiatives designed for the upliftment of tribal communities. We also organized a series of health camps in remote and far-flung villages to provide essential healthcare services and promote health awareness among tribal population. In addition to that, we organized seminars and lectures on the preservation of historical monuments, tribal art and cultural heritage, which was conducted in collaboration with the educational institutions and local organizations. Special programs and interactive sessions were also held, and the celebration featured exhibitions, cultural performance and documentation drive highlighting traditional craft, music and indigenous knowledge system of the tribal communities of Ladakh. And the department also undertook the implementation and dissemination of various tribal welfare schemes, including livelihood support, skill development initiatives and entrepreneurship promotion undergoing of the ongoing central and UT government programs. So these were the initiatives we took during this 15 days program, which is culminating today. So I on behalf of the department once again thank you all very much for gracing this precious occasion. Thank you, ma'am, for your detailed welcome address. Now, I invite Dr. Kanchuk Paldan for his special presentation on the life, leadership and legacy of Bhagwan Birsa Munda.
such rugged hills, dense forests and fertile plains. झारखंड की यह भूमि, यह जंगल और पर्वत कितना अद्भुत क्षेत्र है। इसकी प्राकृतिक संपदा और रणनीतिक स्थिति अद्वितीय है। We must ensure that every river, every hill and every village comes under firm administration. Do you understand, Captain Stewart? हर नदी, हर पहाड़ी और हर गांव हमारे प्रशासन के अधीन आए। योर मैजेस्टी, प्रभावी शासन के लिए चौकियां और गश्त नेटवर्क जरूरी है। Then let it be so. I want Jharkhand not just controlled but fully integrated into the empire's order. झारखंड केवल नियंत्रण में न आए, पूरी तरह से हमारे शासन में समाहित हो। Every village, every forest, every path must recognize the authority of the crown. What do you suggest? बच्चों और युवाओं के माध्यम से दीर्घकालीन परिवर्तन लाया जा सकता है। Yes, you are right. The land is vast, rich, and alive with people who value their freedom. We shall govern wisely and firmly. झारखंड, यह भूमि हमारी योजना और शक्ति का परीक्षण करेगी। Orders shall be executed immediately. सभी आदेश तुरंत लागू होंगे। चौकियां, गश्त, आपूर्ति मार्ग और जमीन पंजीकरण। Jharkhand shall witness the firm hand of governance, and the empire's law will extend to every forest, hill and river. झारखंड अब प्रशासन की मजबूत पकड़ देखेगा और साम्राज्य का कानून हर जंगल, पहाड़ी और नदी तक पहुंचेगा। First, start with missionary work. बिरसा मुंडा, आज से तुम्हारा नाम होगा बिरसा डेविड। आज प्रभु के नाम मैं इस वनवासी बालक को नया जीवन दे रहा हूँ। बिरसा डेविड, ये केवल एक नाम नहीं, यह एक नया अध्याय है, आत्मा का पुनर्जन्म। Hello, Father Lutheran. Please come. For what purpose have you all come today? We have brought a message from the Queen. Oh, I hope you bring me some good news. Father Lutheran, दरअसल ये आपके लिए निर्देश है। चाईबासा में धर्म प्रचार की और आवश्यकता है। और अधिक प्रचार? आप कहना क्या चाहते हैं? चाईबासा के लगभग 50% लोग हमारे ईसाई धर्म को मानते हैं। जो भी हो, इस वीरान सी जगह ईसाई धर्म का सच्चा गढ़ बन सकता है। इस जगह धर्मांतरण की संभावना 100% है। बस आपको उनके साथ नरमी से पेश आना बंद करना होगा। आप लोगों को विवश नहीं कर सकते। फादर लुथरन, हम बचे हुए लोगों को भी धर्म में शामिल करने आए हैं। क्वीन के बनाए गए नए जनरल कानून से हम अधिक लोगों को हमारे धर्म में शामिल कर सकते हैं। जंगल कानूनों का हमारे धर्म से क्या संबंध है? नए कानून के अनुसार जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे, उन्हें उनकी जमीन रखने का हक दिया जाएगा। और यदि वे ऐसा नहीं करे तो इस दशा में क्वीन ही उनकी जमीन की मालिक होंगी, क्योंकि अब से जंगल और खाली जमीन क्वीन की ही संपत्ति मानी गई है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और सरकार की बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि लोगों के दिल प्रेम से ही जीते जा सकते हैं
उनका दमन करके नहीं। फादर लुथरन, आज से ही आपको चाईबासा में मिशन के काम में तेजी लानी होगी। आपको यह सब करने के लिए और अधिक अधिकार और धनराशि दी जा रही है। अभी से काम में लग जाओ फादर लुथरन। जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, जिस हवा में मैंने सांस ली, उसी धरती पर कोई और हम पर अपना भगवान थोपना चाहता है। वे कहते हैं बिरसा तुम्हें सभ्य बनना होगा, ईश्वर को मानना होगा जैसे हम मानते हैं। पर मैं पूछता हूँ, क्या मेरे सिंह बोंगा सूर्य देव सभ्य नहीं? क्या हमारी नदियां, हमारे पेड़, हमारे पर्वत ईश्वर नहीं? वे हमें कपड़ा देते हैं, वे हमें किताबें देते हैं, पर हमारी आत्मा का क्या आत्मा को भी खरीदा जा सकता है? हे धरती माँ, क्या इसीलिए तुमने मुझे जन्म दिया कि मैं अपने विश्वास को किसी और के पैरों में डाल दूं? नहीं, मेरा धर्म मेरी मिट्टी से जुड़ा है, मेरे देश मेरे जंगलों में है। मैंने देखा है कैसे हमारे भाइयों को झूठे वादों से बहकाया गया, कैसे हमारी बहनों को सभ्यता के नाम पर अपने जड़ों से काटा गया। पर अब नहीं, अब ये धरती बोलेगी हमारी बोली, हमारे विश्वास में। मैं बिरसा हूं, मां धरती का पुत्र, जिसे झुकना नहीं आता। मैं अपनी जात, अपने धर्म, अपने देव और अपने लोगों के लिए लड़ूंगा, चाहे क्रॉस टूटे या तीर, सत्य की ज्वाला बुझने नहीं दूंगा। इंकलाब! आओ भाइयों और बहनों, आज धरती आबा हमें पुकार रहे हैं। सुनो, सुनो, हवा में उनकी आवाज गूंज रही है। जंगल के पत्ते कह रहे हैं, अब उठो, अब जागो। हमारे पुरखे सिंह बोंगा, धरती आबा, जाहिर आयो, सब देख रहे हैं कि कैसे हमारे जंगल छीने जा रहे हैं। वे पेड़ जो हमारे साथी थे अब किसी साहूकार के नाम हो गए हैं। क्या ये न्याय है? नहीं रे बिरसा बाबा, नहीं। आबा की संतान है, हमारे लिए हर पेड़ देवता है, हर नदी माता है। अगर कोई इन्हें छीनना चाहे तो वो हमसे हमारी आत्मा छीनना चाहता है। अब हम सब मिलकर कहे, धरती आबा की जय, धरती आबा की जय, सिंह बोंगा की जय, उन्मूलन जिंदाबाद। जंगल आदिवासी, तू लगान नहीं दे रहा। मैं लगान नहीं दूंगा। ये जमीन मेरे पुरखों की है, धरती आबा ने हमें दी है, किसी रानी ने नहीं। क्या कहा? फिर से कहो तो। तू लगान नहीं देगा? नहीं, नहीं दूंगा। धरती आबा की जय, धरती आबा की जय। हमने सब गांवों को खबर भेज दी है बाबा, लोगों ने लगान देना बंद कर दिया है। बाबा, अगर ये आपको पकड़ ले तो हमारा क्या होगा? मुझे पकड़ सकते हैं, पर गुलाम को नहीं। मैं धरती का बेटा हूँ। अगर मैं गिर भी जाऊं तो हर पेड़, हर बीज से नया बिरसा जन्म लेगा। याद रखो, हमारी लड़ाई तलवार से नहीं, सत्य और धरती से। जाओ, हर गांव में ये संदेश पहुंचा दो। तो यही है वो धरती का बेटा। तुमने साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। तुम जानते हो ये राजद्रोह है। राजद्रोह नहीं, धरती की रक्षा है। जिस राज ने हमारे खेतों को लूटा, हमारे देवताओं को अपवित्र किया, हमारे बच्चों को गुलाम बनाया, वो राज हमारा नहीं हो सकता। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अरेस्ट है। जो धरती का बेटा है उसे कोई हथकड़ी नहीं बन सकता।
तुम्हारे कानून का राज कागजों पर है, हमारे कानून हमारे लहू में है और वो आज जाग चुका है। अब चारों ओर फौज फैल चुकी है, हर गांव में इनाम की घोषणा हो गई है। जो भी बिरसा मुंडा को पकड़ाएगा उसे 100 रुपए और जमीन मिलेगी। 100 रुपए में कोई अपना धर्म नहीं बेच सकता। हमारी लड़ाई रुपए से बड़ी है, धरती से बड़ी है। मैं बंदी नहीं हूं, मैं धरती की आवाज हूं, उसे तुम कैद नहीं कर सकते। सिंह दूंगा, मेरे लोगों की रक्षा करना, मेरे लोगों की रक्षा करना। उसे हर हाव में नियंत्रण में रखना है, कोई भी भागने की कोशिश ना करे। डोंबा मेरा शरीर मिट्टी में समा जाएगा, लेकिन मेरा संदेश हडवा राज सेतर जला, महारानी राज सुंदू जला, हर जंगल हर गांव में गूंजेगा। तुम्हें बस ये याद रखना है, धरती हमारी माँ है। तुम लोग घबराओ मत, मैं मरकर भी जीवित रहूंगा। हर पेड़ में, हर नदी में, हर आवाज में जो धरती के लिए लड़ेगा। इस तरह रांची की जेल, जहां 3 फरवरी 1900 को अंग्रेज अफसरों ने बिरसा मुंडा को पकड़कर रखा। गांव में उलगुलान की आग भड़की हुई थी, पर अंग्रेज अफसर उसे रोकने पर तुल गए थे। जंग को पाई जंगल से पकड़कर लाया गया यह आदिवासी नेता, जिन्होंने गांव वालों और जंगल वासियों को संगठित किया, रांची की जेल में बंद कर दिया गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। अंग्रेज रिकॉर्ड के अनुसार 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। इतिहास कहता है कॉलेरा के कारण मृत्यु, जनश्रुतियों में कहा जाता है कि जहर के कारण मृत्यु, पर तथ्य ये है बिरसा मुंडा ने अल्पायु में अपने लोगों के लिए उलगुलान की अग्नि जलाई। पर इतिहास में बिरसा मुंडा का नाम, उसका साहस, उसका संघर्ष और उसका उलगुलान अमर है। आओ हम सब अपने भीतर की क्रांति को जगाएं और क्रांतिवीर धरती आबा उलगुलान को शत शत नमन करें। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट हमारे MP लद्दाख अलहाज हनीफा जान साहब, डायरेक्टर सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर कुंदस अम्मू जी, डायरेक्टर ताहिर हुसैन साहब, जॉइंट डायरेक्टर इफ्तिखार हुसैन साहब और हमारे ADC काचो इम्तियाज़ साहब और डायरेक्टर डॉक्टर सज्जाद यूनिवर्सिटी थी लद्दाख और इनायतुल्ला थी DC या कौंसलर्स
अमीन साहब और बाकी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ही तमाम या उसके तरखान मेहमान वदुन नतीजी आमाज टीमों का गफन गामा दिया उसके तरखान गामा अस्सलाम वालेकुम जिले दिलिंग बहुत खुशहाली जब चिकिन नमंगो यंती वक़्त मलिन मा फ़क़त मुख्तसर दिरिंगी प्रोग्राम पे स्कोर अनु मतन गम्मदियन जम सुंसतन नती एर्थ अब्बा जरना या धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडे बर्थ एनिवर्सरी मौके का दिलिंग मतन गम्मदियन जम सुंसत कि दिशा खसपू ngati धरती फरस ngati सरजमीन पे फरस हिंदुस्तानी खासकर ट्राइबल सोसाइटी फरस ट्राइबल कम्युनिटी फरस चांसिक दी भगवान बिरसा मुंडस खुरस अस्नारिनो कोशिश बस खन इंसु जिस सरजमीन पू तहफ़्फ़ुज़ फ़रस खासकर ट्राइबल कम्युनिटी फ़रस खुशखुरी जान सकपो जसारिन आखिरी लम्हात सकपो कुर्बान छना कोशिश बसे ngati सरजमीन पू ngati गरीब गुरबा आवाम को निफरस खुश अंग्रेज सिशितियानुना आजाद बस छाना दी मोको जो तो फुंगती हिंदुस्तानी सरजमीन भी फरस गासुचिगिस फसद ना ngata खुई दिरिंग याद बायपो ngata गंगमी का जस्तारिना फर्ज इन चादर बना खुइस का तो मफरस पिन सुपना दिरिंग ngata दी धरती पे का दी सरजमीन पे अनुंगतिस जिंदगी बेनियोत आसाइश न यंबो आराम न यंबो छाना जुन गम्मा नता खुई बदौलती का दरिस नतिस नसांस दनियोत छाना दी नदमांगो मजर बयंतन गम्मा दियन स्क्योत पयपी दी भगवान बिरसा मुंडा जनारिन दक्सा नता हिंदुस्तान यानु गा सिक्किम चिक खासकर सोशल वेलफेयर यानु इन्ना हिंदुस्तान गा सिक्किम चिक दरे जनारिन लॉन्च योजना सिक्किम चिक जनारिन नाती दे यानु योजना खुई मिंतक सिका चिया सुंसे चिया दरबनो खोज ट्राइबल कम्युनिटी फेरस लस बसेचु दे फेर नंग अता खुई मिंपू दुनिया त्यानु दुख शिप खुई जस्तारिना जप युपी फरस दरे गति जस्तारिना हिंदुस्तान यानु खुई मिंतक सिकर जस्तारिना सिगीन जस्तारिना मतपो जस्तारिना डुलिनो. Thank you. As we progress in today's ceremony, it is now time to hear from our distinguished dignitaries whose wisdom and guidance add immense value to this important occasion. With great respect, I take the privilege to invite our guest of honor, Honorable Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Shri Aga Sahib Mushtaba Ji, to kindly address the gathering. आज के गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आगा सैयद मुस्तफा साहब, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कुंजस आमो जी, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज श्री ताहिर हुसैन जब्दवी, एडीसी साहब, इफ्तिखार हुसैन साहब जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस, इनायत साहब,
डॉक्टर जफर खान, डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, यहाँ तशरीफ रखे हुए लेडीज़ एंड जेंटलमैन स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स, सोशल वेलफेयर ऑफिसर और उनकी पूरी टीम, मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे लिए बेहद फ़ख्र और एजाज़ की बात है कि आज मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ और हम जनजातीय गौरव वर्ष मना रहे हैं। ये एक कौमी मौका जो भारत की ट्राइबल बरादरियों की बहादुरी, शिनाख्त और वर्षे को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश मना रहे हैं, जो कबायली खुद मुख्तारी के अलंबरदार, जुल्म के खिलाफ मज़ाहिमत की अलामत और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के सच्चे हीरो थे। हिंदुस्तान के वसी जंगलात से लेकर लद्दाख के बुलंद और बाला वादियों तक हमारे मुल्क के कबायली आबादी ने हमेशा कुदरत की हिफाजत की, हमआहंगी को अपनाया और मुल्क की समाजी व सकाफती तरक्की में गैर मामूली किरदार अदा किया। उन्होंने सदियों पुराना इल्म महफूज रखा, सकाफती तसल्सल को बरकरार रखा और बदलते हुए हालात में बेमिसाल साबित कदमी का मुजाहिरा किया। भगवान बिरसा मुंडा भारत के मुमताज़ कबाइल मुजाहिद आज़ादी और समाजी मसलह के तौर पर याद किए जाते हैं। 15 नवंबर 1875 को मौजूदा झारखंड के गांव फुलियातू में पैदा होने वाले सरसा मुंडा का ताल्लुक मुंडा कबाइल से था, जो अपनी ज़मीन, जंगल और सकाफती रवायत से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। जवानी से ही बिरसा ने गैर मामूली कायदाना सलाहियतें, रहानत और रूहानी गहराई का मुजाहिरा किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों की शदीद मुखालिफत की, जो कबायली ज़मीनों पर कब्जा करती, रवायती माइश का निज़ाम बर्बाद करती और भारी टैक्स आयद करती थी। बिरसा मुंडा का यकीन था कि ज़मीन अपने लोगों की है, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल इसकी हिफाजत की है। उन्होंने इस्तेहसाल के खिलाफ एक तारीखी तहरीक शुरू की, जिसे उलगान यानी अजीम शान बगावत कहा जाता है। इनका नारा अव्वा रितुम अव्वा राज यानी हमारे ज़मीन हमारा राज, हजारों आदिवासियों को अपने हुकूक, इज्जत और खुद इख्तियारी के लिए बेदार किया। बिरसा मुंडा ने बरतानवी जबर के खिलाफ बेखौफ जद्दोजहद की और ट्राइबल माशरे को तोहम परस्ती, बंदोआ मजदूरी और शराब नवेशी जैसे बुरे रसूल से आज़ाद कराने के लिए अहम समाजी इस्लाहात की। इनका ख्वाब एक बावकार, मुनज़्ज़म और खुद एहसार कबायली माशरा कायम करना था। सिर्फ 25 बरस की कम उम्री में दुनिया से रुखसत होने के बावजूद बिरसा मुंडा ने वो कारनामा अंजाम दिया जो लोग पूरी जिंदगी में न कर सके। इनकी जद्दोजहद के नतीजे में ब्रिटिश हुकूमत को कबायली ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक़ क़वानीन बनाने पड़े। हुकूमत हिंद ने इनकी खिदमात के एतराफ़ में 15 नवंबर को जनजातीय दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया, ताकि आने वाले नस्लें भी इनकी
बहादुरी, इस्तिकामत और कौमी खिदमत को याद रख सकें। जैसे कि अभी हमारे मुंशी अब्दुल सत्तार का भी यहाँ पे जिक्र हुआ, जिसके ऊपर हमें न सिर्फ फख्र है, हमें चाहिए कि जिस ख्वाब को लेकर अब्दुल सत्तार जैसे फ्रीडम फाइटर्स, बल्कि उस वक्त के हमारे विजनरी लीडरशिप जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया, और न सिर्फ आज़ाद कराया बल्कि ऐसे एक देश का formally expressing our collective gratitude. With the vote of thanks delivered, we express our sincere gratitude to all our dignitaries, guests, faculty members, students and participants for gracing this program. We now request everyone to kindly stand for the national anthem. Shri Muhammad Arifat Jan, Honorable Member of Parliament, Guest of Honor, Awa Sayyid Mustafa, Executive Councillor, NHDC Tarjim, हमारे Director Social Welfare Tribal Welfare Department, Tahir Zabdari Sahab, Director Food Supplies, Iftikhar Sahab, Inayat Sahab, District के Officer, Councillors, Headmasters, Padma Awardees, National Awardees, मैं आप सबका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम में आए और हमारे हौसला अफजाई की। ये जो प्रोग्राम था, ये हम 1 साल से हम इसको मना रहे हैं और इसका जो मेन इंटेंस था वो हमने 15 दिन का मनाया, जिसको हम पखवाड़ा बोलते हैं 1 to 15। उसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंप्स करने की कोशिश किया, क्योंकि पूरा इंस्ट्रक्शन था पीएमओ की तरफ से और वो जो साइट जो है वो पूरा पीएमओ मॉनिटर कर रहा है। तो उसमें हमें टारगेट ये दिया था कि पूरे इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो कल तक का रिपोर्ट के हिसाब से जो लद्दाख में हमने तकरीबन 45 प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि छोटा यूटी है और पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जितना हमसे हो सके हमने प्रोग्राम करने की कोशिश किया। अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर मैन, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर, हमारे इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, सबके गाइडेंस में हमने प्रोग्राम करने की कोशिश किया। तो ब्रीफली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स जैसे हमने इशू ये भी था कि प्रोग्राम जो करने थे वो स्कूल्स कॉलेजेस में करने थे, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो हेडमास्टर्स जो है वो बहुत ही रिलेक्टेंट थे प्रोग्राम करने के लिए। तभी बहुत सारे हेडमास्टर्स ने हमने रिक्वेस्ट किया था, तो हमने तकरीबन 15-20 स्कूल्स में हमने ये सारे प्रोग्राम्स किए। पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में हमने अवेयरनेस किया, और दूसरा हमने ये कोशिश किया कि कम्युनिटी लेवल पे ये सारे अवेयरनेस फैलाया जाए। तो हमने विलेज लेवल पे क्लीननेस ड्राइव करने शुरू कर दिए। अमची मेडिसिन के लिए हमने नुब्रा में अमची मेडिसिन का एक वर्कशॉप किया था, जिसमें बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पांस था। पुराना जो हम पप्पू बनाते हैं उसके लिए हमने एक चमथा एरिया में एक वर्कशॉप किया था। बहुत सारे ले डिस्ट्रिक्ट में भी हमने ऑर्गेनाइज किया, करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी हमने ऑर्गेनाइज किया। तो जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को हमें करने में हमें मदद किया है, उन सब का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ हमारे जो टीम बैठक है, जिन्होंने जो प्ले का जो स्क्रिप्ट है वो मिनिस्ट्री से ही आया हुआ है, होम मिनिस्ट्री से आया हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कॉस्ट्यूम न होने के बावजूद भी उन्होंने एक्ट को किया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। केम श्री जो हमारे मंजी के स्कूल है, उन्होंने नेशनल एंथम के लिए यहाँ पे वो लोग आए, उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो आका साहब के क़यादत में आए हैं। और जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हमारे कहने पे आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स, बालवाड़ी वर्कर्स जो हमारे फ्रंट
टीयर हैं, और सूर्यवेली पब्लिक स्कूल से जो स्टूडेंट्स आए हैं। बेसिकली जो इस प्रोग्राम को 5 हिस्सों में बांटना था, स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, हमारे काउंसलर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे जो ICDS के वर्कर्स, जो CDPOs यहाँ तशरीफ रखे हैं, उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो इन सबको इस चीज़ के लिए विटनेस करना था। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। और मैं यहाँ पे बॉब सज्जाद का बहुत मशहूर हूँ कि अभी हम इस लड़की को फैसिलिटेट भी किया। जितने भी स्कूल्स प्रोग्राम करगिल में हुए पूरा उसी ने बागडोर किया है, वहाँ पे मटेरियल पहुँचाना, वहाँ पे चीज़ों को ले जाना, तो इन सब ने किया है। और मैं इनायत साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने फर्स्ट जो स्पोर्ट्स ट्राइबल स्पोर्ट्स कंक्लूड किया, उसमें तकरीबन 200 जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उसने एक्टिव पार्ट लिया है, जिसमें आपका कबड्डी हो, खो खो हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया है। मैं मीडिया बंधुओं का बहुत मशहूर हूँ कि वो लोग आए, बेचारे बार बार बुलाते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमारे वाइस चांसलर का भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इस चीज़ पर प्रोग्राम करने के लिए हमें परमिशन दिया। और लास्ट में मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने जनरसली हमें फंडिंग किया है इस प्रोग्राम को करने के लिए। और डायरेक्टर मैम के सपोर्ट के बाद हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाते, वो तो मिनट टू मिनट इन्होंने गाइड किया कि इस तरह से करना है, इनको बुलाना है, ये करना है। और लास्ट में हमारे चीफ गेस्ट साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एग्री किया है यहाँ पे आने के लिए। आगा साहब को कल मैंने काफ़ी फ़ोन पर इंसिस्ट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। इफ्तिखार साहब, इनायत साहब और हमारे जाहिद साहब आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का भी शुक्रिया, स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया। और लास्ट में यूनिवर्सिटी के स्टाफ, जितने भी प्रोफेसर यहाँ आए हुए हैं, उनका भी बहुत मशहूर हूँ। स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम होने के बावजूद भी इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग बेचारे आ जाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भाई आप प्रोग्राम ही करते रहते हैं, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोग्राम है बिरसा मुंडा का, जो एक फ्रीडम फाइटर है, जिसका अभी तक हम लोग जितने भी हमारे विलर है, हमारा करेज है, उन सबको उन्होंने सहानुभूति दिया है। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।